Good evening, children. In the previous lecture, where we have completed first two examples of exercise 1.4, and before that, we had sufficient practice of how to begin with such fractional problems. Let us move on for problem number 3 and problem number 4, which are as good as problem number 1 and problem number 2, having a little variation. Okay, so let us switch on. The question is 27 upon x minus 2, 31 upon y plus 3 equal to 85, 31 upon x minus 2, 27 upon y plus 3 equal to 89. Now we can observe two things. Number one, the denominator x minus 2 and the denominator x minus 2 is same. The denominator y plus 3 and denominator y plus 3 is the same. Another thing, number 2, the coefficients are of cross coefficient type, like 27 31 and 31 27. क्लियर है बेटा? तो एक एक चीज को एट अ टाइम वन इस प्रकार से देखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, बिकॉज द डिनोमिनेटर इज सेम, what we are going to do, we are take the common fraction, and the common fraction will be, let us revise 27. The coefficient of 27 is, coefficient मतलब 27 को जो लग के है, तो कौन है बेटा 27 के बाजू में? 27 के बाजू में है 1 upon x minus 2, and who is adjacent to 31? 1 upon y plus 3. So we will write it in such a way that it will look like 27 into 1 upon x minus 2 plus 31 into 1 upon y plus 3 equal to 85. We have taken aside the coefficients, that is 1 upon x minus 2, 1 upon y plus 3, and similarly another equation also doing the same thing, it will be 31 into 1 upon x minus 2 plus 27 into 1 upon y plus 3, and that is equal to 89. क्लियर है बेटे इतना? अगली स्टेप में, as you can understand, as you can predict, what we are going to do is, see, I will put 1 upon x minus 2 is equal to a. तो ये 1 upon x minus 2 यहाँ पे है और ये यहाँ पे भी 1 upon x minus 2 है. I am going to put 1 upon y plus 3 is equal to b. 1 upon y plus 3 is equal to b. After putting these things, आइए देखते हैं अगला स्टेप कैसा दिखता है. So the next step will be 27 1 upon x minus 2 a plus 31 1 upon y plus 3 b is equal to 85. ठीक है बेटा? 27a plus 31b equal to 85. This is our first equation, and comma 31 1 upon x minus 2a plus 27 1 upon y plus 3b is equal to 89, and this is our second equation. Clear? Now you can observe that it is of cross coefficient type. 27 31 31 27. बेटा a और b के कोएफिशिएंट जब भी इंटरचेंज हो जाते हैं तो क्या करते हैं हम लोग उन दोनों को एक बार ऐड करते हैं और उन्हीं दोनों को एक बार सबट्रैक्ट करते हैं. क्लियर इतना? बिकॉज दे आर 27 31 31 27 क्रॉस वाला पैटर्न है, तो मैंने लिखा था adding 1 and equation 2.
इन दोनों को ना हम लोग एक बार ऐड करते हैं। आइए देखते हैं कैसा दिखता है। 27a plus 31b is equal to 85 और उधर बेटा 31a plus 27b is equal to 89। इनका एडिशन हमको देगा, द एडिशन विल बी 7 plus 1 8, 2 plus 3 5, that goes to 58a plus ये भी 31 plus 27 उतना ही हो जाएगा, इट विल एज गुड। तो ये हो गया आपका 58b और ये थोड़ा सा बड़ा एडिशन है, सो 5 plus 9 is 14, 4 1 carry and this is 174, clear? Now 58a 58b 174, I suggest divide each by 3, और अगर डिवाइड each by 58, सबको बेटा 58 से डिवाइड करते हैं ना, और जैसे ही इसको 58 ने डिवाइड किया, 58a divided by 58 gives us a, 58b divided by 58 gives us b, 174 divided by 58 like this, 174 divided by 58 gives us 3, 174 divided by 58 3। तो ये नया इक्वेशन हमारे सामने अभी बन गया है जिसका नंबर है 3। ये 1 2 इनको ऐड करके बन गया इक्वेशन नंबर 3। यहां से आगे बढ़ते हैं। जैसे हमारा तय हुआ था क्रॉस कोएफिशिएंट्स वाले प्रॉब्लम में, हम लोग इन दो इक्वेशंस को एक बार ऐड करने वाले हैं और इन्हीं दो इक्वेशंस को एक बार सबट्रैक्ट करने वाले हैं। तो मैं लिखूंगा बेटा इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। ये रहा आपका 27a प्लस 31b इज इक्वल टू 85 और ये दूसरा 31a प्लस 27b इज इक्वल टू 89। अब हम सबट्रैक्ट करने जा रहे हैं, तो दो चीजों का प्रिकॉशन लीजिए। नंबर 1, क्योंकि सबट्रैक्ट कर रहे हैं ना, तो एक लाइन छोड़ दीजिएगा थोड़ा सा, और उसमें क्या करेंगे ना हम लोग, जो नीचे वाला इक्वेशन है उन सबके साइन बदल देंगे। जैसे ये प्लस है तो मैंने दिया बेटा माइनस, ये भी प्लस है तो मैंने दिया माइनस, और यहाँ पे भी प्लस है तो मैंने दिया माइनस। हो गया एक काम। दूसरा और संभल के जाना होगा, क्योंकि 27 माइनस 31 करने जा रहे हैं। देखो सीधे सीधे ना 31 में से 27 माइनस करो, 31 माइनस 27 4, तो ये लिखा बेटा मैंने 4a। अब इन दोनों में लार्जर कौन है? 31, और बेटा 31 का साइन ये लिखना पड़ेगा। 31 का साइन क्या है बेटा? माइनस। तो दोनों में जो लार्जर है ना उसका साइन जाएगा। फिर आगे 31b, ये नीचे वाला देखना कभी, ये नहीं देखना बेटा, नीचे वाला देखना। 31b माइनस 27b इज 4b। दोनों में लार्जर है 31 और उसका साइन है प्लस, तो हमने वो दे दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 85 माइनस 89 4, दोनों में लार्जर है 89 और उसका साइन क्या है 89 का? माइनस। लार्जर नंबर का जो साइन है वो कैरी हो जाएगा। एक बात बढ़िया दिख रही है, यहाँ पे सब जगह पे 4 आ गया, क्योंकि हर जगह पे 4 आ गया ना। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, डिवाइड ईच बाय 4। आप डिवाइड ईच बाय -4 भी कर सकते हो, वो तो मैंने थोड़ा माइनस से करके मैं संभल के जाऊंगा। डिवाइड ईच टर्म बाय 4, इसको जैसे ही हमने 4 से डिवाइड किया बेटा, तो मेरे पास बाकी बचा -a, इसको 4 से डिवाइड किया तो बाकी बचा b, और इसको भी 4 से डिवाइड किया है तो बाकी बचा -1। ये मिल गया हमको नया इक्वेशन, एंड दिस इज अवर न्यू इक्वेशन नंबर 4। क्लियर? ये ऑब्वियसली थोड़े बड़े प्रॉब्लम्स है, पर कंसेप्ट समझ में आ गया है तो सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा।
अब देखिए आप इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4, इनमें हम ए पे फोकस करते हैं। ए का साइन नेगेटिव, ए का साइन पॉजिटिव, साइन अपोजिट है, और जैसे ही साइन अपोजिट है हम इक्वेशन को ऐड करेंगे। मैं लिखता हूं आपके लिए साइन अपोजिट ऐड इक्वेशंस। कुछ स्टूडेंट बीच बीच में पूछते हैं सब्ट्रैक्ट कहाँ करना, ऐड कहाँ करना, तो बेटा सारी चीजें केयरफुली देखेंगे, ध्यान देंगे ना, तो सब बढ़िया समझ में आता है। ऐसे क्रॉस कोएफिशिएंट वाले प्रॉब्लम रहेगा ना, तो हम दोनों को एक बार ऐड करेंगे और इन्हीं दोनों को एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे। अच्छा, सिंपल इक्वेशंस रहेगा तो इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसका भी 1 है, तो बढ़िया, कोएफिशिएंट तो सेम होना ही चाहिए। पर क्योंकि साइन नेगेटिव पॉजिटिव अपोजिट दिख रहा है, तो साइन अपोजिट है, तो इक्वेशंस को हम लोग अभी ऐड करने जा रहे हैं। ऐड करते हैं बेटा, ये रहा आपका a प्लस बी इक्वल टू 3, और ये दूसरा इक्वेशन आपका बेटा माइनस ए प्लस बी इक्वल टू -1, दोनों को ऐड करते हैं। दोनों को जैसे ही ऐड करते हैं a माइनस ए कैंसिल हो गया, तो मेरे पास बाकी बचा b प्लस बी 2b, और इन दोनों का एडिशन हो गया बेटा 3 - 1 2, which gives us b is equal to, तो इधर इससे नीचे चला आया तो b equal to बचा हमारे पास में 1, and when b is equal to 1 put back, put in equation 3, equation 3 मतलब यहाँ पे पुट करेंगे हम लोग जो ऑलरेडी है आपका a प्लस बी इक्वल टू 3, जहां आप b इक्वल टू 1 पुट करने वाले हो, b इक्वल टू कितना पुट किया 1, यहां से आगे का आपको आता है इक्वल टू 3, जो देता है हमें a इक्वल टू 3 माइनस 1, सो a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 1 मिला, a इक्वल टू 2 मिला। क्या प्रॉब्लम फिनिश हो गया? नहीं ना, प्रॉब्लम कैसे फिनिश होगा? अरे बाबा, क्वेश्चन तो एक्स वाई में शुरू किया है। तो अमिताभ बच्चन ने कहा था ये खेल एक्स वाई ने शुरू किया है और खत्म भी एक्स वाई ही करेगा, ए और बी नहीं करेंगे, ठीक है ना? तो ए और बी में आंसर फिनिश नहीं होने वाला। हम अभी लिखेंगे जितना मेरे पास जगह है उतना मैं करूंगा, कुछ बचा तो आप करने वाले हो, तैयार रहिए इसके लिए। बेटा हमने लिखा रद्द, put back 1 upon x minus 2 is equal to a, put back वापस करो 1 upon y plus 3 is equal to b, वापस दे दिया वापस। आगे बढ़ते हैं, 1 upon x minus 2 is equal to a का वैल्यू कितना है बेटा 2, चले आगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, अब इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है, 2 इसको मल्टीप्लाई करेगा 2 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू 1 इंटू 1 1 इंटू 1, नीचे 1 है 1, और 2 इसको मल्टीप्लाई किया बेटा, जो हमें देगा 2 इंटू एक्स 2x minus 2 to the 4 equal to 1, which gives us 2x is equal to 1 plus 4, which gives us 2x equal to 5, which gives us x equal to 5/2। चलो x का वैल्यू तो पूरा मिल गया है। अब वैसे ही हमें y का वैल्यू फाइंड आउट करना है, where b is equal to 1, तो ये और सिंपल हो गया है बेटा। ये रहा आपका 1 upon y plus 3 is equal to 1, b का वैल्यू कितना है 1, कितना है बेटा b का वैल्यू 1, तो b का वैल्यू 1 है, तो हम फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे बेटा हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपको देता है
जैसे नीचे कुछ नहीं है मतलब वो 1 है, 1 इंटू वाई प्लस 3, वाई प्लस 3, 1 इंटू 1, 1, वाई इक्वल टू 1, 3 गया उधर, -3, सो वाई इक्वल टू -2, कितना आ गया बेटा -2। और जब एक्स वाई में शुरू किया था, एक्स वाई में फिनिश किया, तो अभी यहाँ पे लिखेंगे हम लोग सॉल्यूशन सेट, दैट इज 5/2 एंड -2। कितना निकाला हमने 5/2 एंड -2। ऐसा था, प्रॉब्लम दिखने में बड़ा था लेकिन डरावना बिल्कुल नहीं था। प्रॉब्लम दिखने में बड़ा है लेकिन उसमें कॉम्प्लिकेशंस कुछ नहीं है, कैलकुलेशंस है। दो प्रॉब्लम जो हमने इसके पहले पढ़े हैं उनको जोड़ के बड़ा प्रॉब्लम किया है। तो सब्स्टिट्यूशन आपको मालूम है, क्रॉस कोएफिशिएंट को एक बार ऐड एक बार सब्ट्रैक्ट, ये भी मालूम है। ये तो 9th स्टैंडर्ड में पढ़े हो आप, यहाँ से मान के चलिए नया प्रॉब्लम शुरू होता है, ये भी आपको मालूम है। प्रॉब्लम जब डिफिकल्ट लग रहा था इसने हमें मदद की, हमारा प्रॉब्लम सिंपल हो गया। अब जो मदद ली थी वो मदद हमने वापस कर दी, थैंक्स बोल के वापस कर दी, प्रॉब्लम फिनिश हो गया। ठीक है, आप इसे पॉज करिए, नोट करिए। कहाँ नोट करिए? टेक्स्ट बुक का प्रॉब्लम है, फेयर कॉपी में नोट करेंगे। ठीक है बेटा, पॉज द वीडियो एंड नोट द प्रॉब्लम। फिर इस प्रॉब्लम का आगे क्या करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। चलो कम ऑन, पॉज द वीडियो। सिस्टमैटिक, जब तक आप प्रॉब्लम नोट कर रहे थे तो फट से बोर्ड का फ्रेम चेंज हो गया, वो प्रॉब्लम अपने आप वाइट हो गया और नया प्रॉब्लम बोर्ड पे आ गया। दिस इज प्रॉब्लम नंबर 4, लास्ट प्रॉब्लम ऑफ एक्सरसाइज 1.4, और बढ़िया प्रॉब्लम है, जबरदस्त प्रॉब्लम है। क्या करना है बेटा इसमें? ये बढ़िया इसलिए है क्योंकि एक्सरसाइज 1.4 के जहां तक 4 प्रॉब्लम्स की हम लोग बात करते हैं, तो 4th प्रॉब्लम में ऐसा पहली बार हुआ है कि राइट हैंड साइड में फ्रैक्शन आ गया है 3/4। राइट हैंड साइड में फ्रैक्शन आ गया -1/2। इसके पहले के तीनों प्रॉब्लम्स में जो नंबर था वो सिंपल था, इस बार नंबर फ्रैक्शन में आ गया, नंबर फ्रैक्शन में आ गया। तो ये हमें कुछ नया सिखाएगा। बाकी तो वही है, कॉमन निकालना पड़ता है, उसको ए बोलना पड़ता है, वो भी मैंने लिख के रखा है। जैसे 1/3x plus y एंड 1/3x plus y, इसको मैंने लिखा है a। 1/3x minus y और 1/3x minus y, इसको मैंने लिखा है b। हम दोनों साथ में आगे बढ़ते हैं। आप रिकॉल करते करते, रिवाइज करते करते मेरे साथ बोलते हुए आगे बढ़िए। लिखो मत, बोलो मेरे साथ, कम ऑन। कैसा बोलते इसको? अरे बेटा, पूरा 1/3x plus y बनेगा a, 1/3x minus y b, पूरा 1/3x minus y b होता है। तो ये बन गया बेटा आपका b, लेकिन आगे 3/4 ये हमारे लिए थोड़ा सा नया है। अच्छा उधर चलते हैं ना, तो यहां देखो बेटा, ये लिखा मैंने पहले हाफ। क्या लिखा बेटा? हाफ। ये नीचे है, तो नीचे है 1/2, तो मैंने इसको लिखा 1/2 लिखा। लेकिन 1 तो दोनों का है, 1 जैसे 2 के लिए है, 1 इसके लिए भी है, तो 1/2 लिखने के बाद में ये देखिए आपका 1/3x plus y। क्या होता है 1/3x plus y? वो होता है बेटा a माइनस, मैं 1/2 तो लिख लिया है बाबा, ये देखो 1/2 लिख लिया मैंने। अब बचा है 1/3x minus y। ये 1/2 लिखने के बाद में 1/3x minus y, ये 1/3x minus y क्या बनेगा? b। और आगे देखिए आप, आपको दिखेगा -1/8 जो फ्रैक्शन में है। ये अभी भी फ्रैक्शन में है, जो हमें नहीं चाहिए। आइए फिर से एक बार फ्रैक्शन हटाते हैं। ठीक है, फ्रैक्शन कैसे रिमूव होगा? देखो डिनोमिनेटर में जो नंबर्स आप देख रहे हैं 2, 2, 8,
इन सब में लार्जर है 8, बड़ा है 8, तो मैंने भी लिखा मल्टीप्लाई ईच बाय 8, क्योंकि लार्जर 8 है तो वो सबको मल्टीप्लाई करेगा। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये है आपका हाफ ए माइनस हाफ बी इक्वल टू -1/8, तो पहले वाले को मल्टीप्लाई करेगा बेटा 8, दूसरे वाले को मल्टीप्लाई करेगा 8, और तीसरे वाले को भी मल्टीप्लाई करेगा 8। फ्रैक्शन में जो सबसे बड़ा है वो सबको मल्टीप्लाई करने वाला है। अब ये चला आपका इधर में 2 1 जा 2 4 जा, तो ये बन गया बेटा आपका 4a, 2 1 जा 2 4 जा, तो ये बन गया बेटा आपका 4b, और इधर तो बहुत बढ़िया पूरा 8 8 कैंसिल, तो हमारे पास आ गया बेटा -1। ठीक है, तो इसको हमने कर दिया बॉक्स। 4a माइनस 4b इज इक्वल टू -1, ये हमारा सेकंड इक्वेशन। कहाँ है फर्स्ट इक्वेशन? देखो फ्रैक्शन, हटा दे इसको। फ्रैक्शन को कैसे रिमूव करोगे? फर्स्ट इक्वेशन में डिनोमिनेटर में कौन कौन है? फर्स्ट इक्वेशन में डिनोमिनेटर में है सिर्फ 4, सिर्फ 4, तो हमने लिखा मल्टीप्लाई ईच बाय 4। प्रत्येकाला कशाने मल्टीप्लाय करणार बेटा आपण? 4 ने मल्टीप्लाय करणार। जसा a प्लस b इक्वल टू 3/4, तर याला मल्टीप्लाय करणार 4 नी, याला पण मल्टीप्लाय करणार 4 नी, आणि याला पण मल्टीप्लाय करणार 4 नी। ठीक है बेटा, ये आगे हो गया बढ़िया। 4a प्लस 4b कैंसिल इज इक्वल टू 3। चलो इसको भी बॉक्स कर दिया, और एक बहुत बढ़िया बात हो गई, सरदर्द नहीं रहा कि कोएफिशिएंट अभी हमको सेव नहीं करना है बाबा। ये -4b, ये 4b, बहुत बढ़िया काम हो गया। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। क्योंकि कोएफिशिएंट सेव है b का 4, साइन अपोजिट भी है, तो जैसे थोड़ी देर पहले मैंने लिखा था साइन ऑपोजिट, फिर अगले प्रॉब्लम में मैं साइन वो नहीं लिखने वाला। ये ओप्पो आपका मोबाइल नहीं है ओप्पो, ये ओप्पो है ऑपोजिट है। साइन ऑपोजिट रहा तो हम लोग क्या करेंगे? ऐड इक्वेशंस, इक्वेशंस को हम लोग ऐड करते हैं। ठीक है, तो आगे हमने लिखा, यही भी लिख देते हैं, जगह है तो फिर बाद में उधर काम में आएगी जगह। एडिंग इक्वेशंस 1 एंड 2, ये देता है आपको 4a प्लस 4b इक्वल टू 3, और ये देता है आपको 4a माइनस 4b इक्वल टू -1। दोनों को ऐड कर दिया, एडिशन बहुत बढ़िया बन गया आपका। 4a प्लस 4a 8a, इनको तो जाना ही था, प्लस 4b माइनस 4b कैंसिल, और बेटा 3 - 1 2। अरे यार, ये कॉम्प्लिकेशन कुछ हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा है। चलो देखते हैं, ये बन गया आपका आगे a इज इक्वल टू 2, और 8 मल्टीप्लिकेशन में था तो अभी इस बार आ गया डिवीजन में, और ये आगे चला बेटा a इज इक्वल टू 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। a इज इक्वल टू कितना मिलता है बाबा हमको? a इक्वल टू मिलता है 1/4। अभी b फाइंड आउट करना है, तो b फाइंड आउट करने के लिए हम लोग इक्वेशन 1 में आते हैं। पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हमें a का वैल्यू पुट करना है। जो इक्वेशन 1 है हमारा, क्या है हमारा इक्वेशन 1? हमारा इक्वेशन 1 है बेटा 4a प्लस 4b इज इक्वल टू 3। इसमें हमें a का वैल्यू पुट करना है, तो ये बहुत बढ़िया जगह मिल रही है हमें। 4 इंटू a का वैल्यू है 1/4 प्लस 4b इज इक्वल टू 3। 4 4 कटा 1
plus 4b is equal to 3, 4b is equal to 3 minus 1, so that 4b equal to 2, 3 minus 1 2, so that b equal to 2 upon 4, so b equal to 1 by 2। इस प्रकार a और b हमें मिल गया है और आंसर फिनिश नहीं हुआ। क्योंकि अमिताभ बच्चन ने कहा है ये खेल एक्स वाई ने शुरू किया था मेरे भाई और खत्म भी एक्स वाई करेगा। तो ए और बी में प्रॉब्लम फिनिश होगा क्या? प्रॉब्लम ए और बी में फिनिश नहीं होगा, प्रॉब्लम का खत्म होगा, एक्स और वाई में फिनिश होगा। हमें आगे बढ़ना होगा। हमें मतलब हमें, मैं नहीं आगे बढ़ने वाला, मैं तो आपके साथ यही तक हूं, यहां से आगे का आपको करना है। आइए put back 1 upon 3x plus y is equal to a and 1 upon 3x minus y is equal to बेटा b। कर दिया पुट बैक। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये फिर आगे चलेगा 1 upon 3x plus y is equal to a का वैल्यू है 1 by 4, 1 upon 3x minus y is equal to b का वैल्यू है 1 by 2। न्यूमरेटर दोनों का सेम है 1 1, उनको इग्नोर करिए, बाजू में रखिए। तो ये देता है आपको 3x plus y equal to 4, 3x plus y equal to 4, जिसको हमने अभी नया नंबर दे दिया, ये है हमारा नया नंबर 3, क्योंकि हमने अभी तक 1 और 2 ही दिया है। अच्छा इधर देखते हैं ना, तो फिर से दोनों का न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर कंपेयर होगा, तो वो है 3x minus y is equal to 2। दिस इज आवर न्यू इक्वेशन नंबर 4। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपकी मदद करने को तैयार हूं। यहां से आगे का हम लोग साथ में ही सॉल्व करेंगे। यू हैव टू पॉज द क्लिप एंड नोट दिस मच। आप क्लिप मतलब वीडियो क्लिप को पॉज करके इतना सारा नोट करिए, ठीक है? चलो करो, पॉज लो। हाँ लिख के हो गया होगा। तो जहां पे हम लोग रुके हैं वहीं से आगे बढ़ते हैं। ये दो इक्वेशन जो आप देख रहे हो, इन दोनों को मैं एक बार फिर से आपके सामने लिखता हूँ। इक्वेशन 3 लिख रहा हूँ मैं, ये तो हमारा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा बाजू में रखते हैं। इक्वेशन 3 जो है हमारा वो है 3x plus y equal to 4, और इक्वेशन नेक्स्ट है 3x minus y equal to 2। ठीक है ना बेटा? यहां से आपको आता है। देखो, the coefficient of y is 1, coefficient of y is 1, x का भी सेम है मालूम है मेरे को, पर क्या है ना कि साइन अपोजिट रहा तो ऐड करने में अच्छा लगता। करके हम y की बात कर रहे हैं, तो y का कोएफिशिएंट सेम है और साइन अपोजिट है, देर किस बात की, आइए ऐड करते हैं। एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4, हम लोग इन दोनों इक्वेशंस को क्या करने जा रहे हैं, ऐड करने जा रहे हैं। तो 3x plus 3x हो गया 6x plus y minus y कटा, 4 plus 2 हो गया 6, x equal 6x equal to 6 माने x equal to 1। पुट इन इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 में x का वैल्यू रख देते हैं, वो वहां पे चलो जो हमारी इक्वेशन 3 है, तो इक्वेशन 3 में लिखता हूं एक बार, जो है 3x plus y is equal to 4। Let's move on, x is equal to 1, it is 3 into 1 plus y is equal to 4 gives us 3 plus y equal to 4 gives us y equal to 4
-3 so that y equal to 4 minus 3 1. In this way problem is finished. अगर यहां तक आप सॉल्व करते हो, कोई भी गलती नहीं करते हो, तो इस 4 मार्क के प्रॉब्लम में आपको 4 में से 3.5 मिलेगा, 3.5 मिलेगा, तो आधा मार्क आ गया, आधा मार्क यहाँ जा सकता था। Therefore, solution is xy is equal to x is equal to 1 1। ठीक है, तो इसको नोट करेंगे। ये प्रॉब्लम आपको कैसा लगा आप हमें जरूर बताइए। हमारा पता है आपकी कॉपी, फेयर कॉपी, आपका मोबाइल, इमेज, क्लिप, सेव और हमें भेज दीजिए। ठीक है बेटा, आज 2 प्रॉब्लम्स जो हमने पढ़े हैं, प्रॉब्लम नंबर 3 एंड प्रॉब्लम नंबर 4, ये दोनों प्रॉब्लम्स आपको 2-2 बार करके मुझे भेजने हैं। मैं आपको बताता हूँ, आप कंफ्यूज नहीं होना। एक तो थर्ड और फोर्थ प्रॉब्लम फेयर कॉपी में नोट करो, कर दिया? फिर पेजेस लो, खुले पेजेस। थर्ड प्रॉब्लम 2 बार करो, फेयर कॉपी में किया वो छोड़ दो, भूल जाओ, 2 बार करो। थर्ड प्रॉब्लम मुझे सेंड करो, फोर्थ प्रॉब्लम 2 बार करो, मुझे सेंड करो। इस प्रकार हर प्रॉब्लम 3-3 बार होगा, 1-1 बार फेयर कॉपी में, 2-2 बार मुझे आप भेजोगे। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर।